Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो जैसे हम सब जानते हैं, हम पठन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से पहला स्कंद 11वां अध्याय और श्लोक संख्या है 36। श्लोक इस प्रकार से, उद्दाम भाव पिशु नामल वल्गुहास वृद्धावलोक निहतो मदनु अपि यासां संहुया चापम अजत अजहात प्रमादोतामस्ता यस्येन्द्रिय विमहितुम कुहकैर्न सेकु। तो the translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Although the queen's beautiful smiles and furtive glances were all spotless and exciting, and although they could conquer Cupid himself by making him give up his bow in frustration, and although even the tolerant Shiva could fall victim to them, still, despite all their magical feats and attraction, they could not agitate the senses of the Lord. Purport. The path of salvation or the path going back to Godhead always forbids the association of women, and the complete Sanatan Dharma or Varnashrama Dharma scheme forbids or restricts association with women. How then can one be accepted as Supreme Personality of Godhead who is addicted to more than 16,000 wives? This question may be relevantly raised by inquisitive persons really anxious to know about the transcendental nature of the Supreme Lord. And to answer such questions, the sages at Naimisharanya have discussed the transcendental character of the Lord in this and in the following verses. It is clear herein that the feminine attractive features which can conquer Cupid or even the supermost tolerant Lord Shiva could not conquer the senses of Lord Cupid. Business is to invoke mundane lust. The whole universe is moving, being agitated by Cupid's arrow. The activities of the world are being carried on by the central attraction of male and female. A male is searching for after a mate to his liking, and the female is looking after a suitable male. That is the way of material stimulus. And as soon as a male is combined with a female, the material bondage of living being is at once tightly interlocked by sex relation, and as a result of this, both the males and the female's attraction for sweet home, motherland, bodily offspring, society, and friendship and accumulation of wealth becomes the illusory field of activities, and thus the false but indefatigable attraction for the temporary material existence, which is full of miseries, is manifest. Those who are therefore on the path of salvation for going back home, back to Godhead, are specially advised by all scriptural instructions to become free from such paraphernalia of material attraction. And that is possible only by the association. This is very important. This is only possible by association of devotees of the Lord who are called the Mahatmas. Cupid, just 1 minute. Cupid throws his arrow upon living beings to make them mad after opposite sex, whether the party is actually beautiful or not. Cupid's provocations are going on even among beastly societies who are all ugly looking in the estimation of the civilized nations. Thus, Cupid influence is exerted even among the ugliest form, and what to speak of
the most perfect beauties. Lord Shiva, who is considered to be most tolerant, was also struck by the Cupid arrows because he also became mad after the Mohini incarnation of the Lord and acknowledged himself to be defeated. Cupid, however, was himself captivated by grave and exciting dealings of the goddesses of fortune, and he voluntarily gave up his bow and arrow in a spirit of frustration. Such was the beauty and attraction of the queens of Lord Krishna. Yet they could not disturb the transcendental senses of the Lord. This is because the Lord is all perfect, Atmarama, all self-sufficient. He does not require anyone's extraneous help for his personal satisfaction. Therefore, the queen could not satisfy the Lord by their feminine attractiveness, but they satisfied him by their sincere affection and service. Only by unalloyed transcendental loving service could they satisfy the Lord, and the Lord was pleased to treat them as wives in reciprocation. Thus, being satisfied their unalloyed service only, the Lord reciprocated the service just like a devout husband. Otherwise, he had no business becoming the husband of so many wives. He is husband of everyone, but to one who accepts him as such, he reciprocates. This unalloyed affection for the Lord is never to be compared to mundane lust. It is purely transcendental, and the grave dealings which the queens displayed in natural feminine ways were also transcendental because the feelings were expressed out of transcendental ecstasy. It is already explained in the previous verse that the Lord appeared like a mundane husband, but factually his relations with his wife was transcendental, pure, and unconditioned by the modes of material nature. Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम तो ये बोलना चाहता था कि कल एक बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन हुआ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। कल ऐसा हो गया कि मैं टोटली मेरे मतलब फ्राइडे तक मुझे याद था कि आज मेरा मतलब मंडे के दिन मेरा क्लास है, बट उसके बाद में सैटरडे संडे टोटली मेरे दिमाग से निकल गया कि मेरा क्लास है और ये श्लोक मुझे लेना है। तो कल हम मतलब एकाएक मुझे जब मैं संध्या आरती कर रहा था तो मुझे लगा कि मेरा शायद कल क्लास है। तो संध्या आरती मैंने जो समाप्त की, उसके बाद में भगवान से प्रार्थना की और फिर मैंने फोन किया। और फोन किसको किया? मैंने फोन किया समीर प्रभु को। तो समीर प्रभु कल जो है मंदिर में थे, तो उन्होंने कहा प्रभु मैं मंदिर में हूँ। तो मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर मैंने सत्यराज प्रभु को फोन लगाया और सत्यराज प्रभु से मैंने पूछा कि प्रभु मेरा क्या क्लास है क्या कल? तो उन्होंने बोला हाँ प्रभु आपका क्लास है। फिर भी उन्होंने चेक करके मुझे वो मैसेज भेजा और पता नहीं क्यों मेरे मतलब व्हाट्सएप से वो मैसेज डिलीट हो गया था, तो मुझे श्लोक का पता नहीं था। तो उन्होंने कल श्लोक बताया कि 1:11:36 आपको लेना है और आपका क्लास है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस समय पे जो है भागवतम का 1:11:36 श्लोका खोला और उसको पढ़ने लगा। जब पढ़ने लगा तो मुझे याद आया अभी देखिए यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो ये जो मैंने तात्पर्य और अनुवाद और ये सब पढ़ा, तो उसके बाद में सडनली मुझे याद आया कि भगवान की इतनी कृपा थी कि कल भक्ति विकास स्वामी महाराज ने जो रीजन स्कूल में क्लास लिया था वो इसी विषय पे था और उन्होंने भगवत गीता का 3.34 श्लोक के ऊपर क्लास लिया था। बहुत ही सुंदर क्लास था। तो उसके अंदर से कुछ पॉइंट्स जो मुझे याद है, जो मैंने उस समय पर फिर रिकलेक्ट करने की प्रयास किया, तो मुझे कुछ पॉइंट्स याद आई, तो वो मैं पहले शेयर करूंगा। उसके बाद में हम इस विषय के ऊपर हम जो है क्लास फिर आगे लेंगे। तो महाराज ने पहले बताया कि तो 3 आश्रम हैं, यानी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये तीनों आश्रमों को सर्वप्रथम बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ऑपोजिट सेक्स से
जो है उनके साथ में संपर्क, उनके साथ में एसोसिएशन, उनका एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। तो कौन से आश्रम? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। नॉट ओनली दे शुडंट नॉट एसोसिएट, महाराज ने स्पेसिफिकली बताया कि न केवल उनको उनका संग लेना चाहिए, बल्कि उनके साथ में मिंगल नहीं होना चाहिए, उनसे बात नहीं करना चाहिए, उनके साथ में हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, उनके साथ में जोक्स नहीं करने चाहिए, बिकॉज दिस कुड ब्रिंग द डाउनफॉल। भक्तों का जो पतन इसके माध्यम से हो सकता है, क्योंकि ऑपोजिट सेक्स है उसके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। तो ये उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई। तीनों आश्रम यानी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो बोलता ठीक है, इवन द सन्यासी हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली द रेगुलेशंस मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स। जो सन्यासी हैं, ये तीन तो आश्रम मैंने पहले बता दिए, उसके बाद में उन्होंने सन्यासियों के बारे में बताया। द सन्यासीज हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली द रेगुलेशंस मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स। जो शास्त्रों में बताए गए नियम हैं, उन नियमों का बहुत जो है दृढ़ता पूर्वक सन्यासियों को उनका पालन करना चाहिए। अभी गृहस्था के बारे में बताया। गृहस्था हैं, उनको जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी उनके यौन संबंध कर सकते हैं अपनी पत्नी के, केवल अपनी पत्नी के साथ और किसी के साथ में नहीं। और वो भी किस कारण से? तो कृष्ण भावना भावित बच्चे पैदा करने के लिए वो ये कार्य कर सकते हैं। तो इवन द मोस्ट एडवांस्ड डिवोटीज फॉल डाउन बिकॉज ऑफ द लस्ट। तो ये काम वासना है, उससे बहुत एडवांस डिवोटीज हमने देखा है कि सन्यासी लेवल के भी डिवोटीज जो हैं वो फिर उनका पतन हो जाता है और वो फिर गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं, या ब्रह्मचारी का पतन हो जाता है और वो जो है गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। तो मतलब ये बताया उन्होंने। और उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस में आल्सो लीड वन टू गो एस्ट्रे एज देयर इज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट। अभी ये जो श्लोक, ये जो पार्ट है, उन्होंने भगवद गीता के 3.34 श्लोक के अंदर से मतलब बताया और उसके कोई बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने बताया प्रैक्टिस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, अगर हम गृहस्थ आश्रम के अंदर भी हैं और वहां पर हम ये कार्य करते हैं, यानी अगर हम यौन संबंध अपनी पत्नी के साथ में स्थापित करते हैं और उनके साथ में मतलब हमारा व्यवहार होता है, तो वो भी शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए कि शास्त्रों के अंदर कैसा बताया है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्रों में जो बताया गया उसको एक बहाना लेकर हम उसके अंदर और उत्तेजित हो जाएं और उस कार्य को ज्यादा मतलब फॉलो करें। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा to go astray there is a chance of accident even on the most royal road। बोलता अगर ऐसे रूल्स रेगुलेशंस अगर फॉलो करेंगे तभी भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, और बहुत ही जिसको बोलते हैं रॉयल यानी शाही रास्ते बने हुए हैं उसके ऊपर भी मतलब जो है एक्सीडेंट हो सकता है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया, लंदन से लेके लीड्स तक वहां पर एक रास्ता है जो रोमन्स ने बनाया था। जो रोम के जो ये थे मतलब राजा थे और रोम के जो लोगों थे, उन्होंने वो रास्ता बनाया लंदन से लीड्स तक। बोलता इतना बेहतरीन, इतना मजबूत और इतना अच्छा रोड है, और उसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि वो रास्ता इतना लंबा रास्ता होने के कारण वो लंबा एकदम सीधा है, सटीक एकदम स्ट्रेट है, और मगर बहुत अच्छा और बहुत विकसित वाला रोड है। तो बोलते हैं मगर ऐसे रोड्स के ऊपर एक्सीडेंट्स होना, अब ये रॉयल रोड है, एकदम साफ है, मजबूत है, स्ट्रेट है, मगर उसमें एक्सीडेंट्स होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने बताया कैसे हो सकता है, तो बोला उसके वो समझाने से पहले उन्होंने बताया कि इस वजह से, मतलब जो वजह है उस वजह से वहां के जो लंदन के रहवासी, मतलब यूके के जो रहवासी है, गवर्नमेंट ने उन्होंने एक दूसरा रोड बनाया जो सेम लंदन से लीड्स तक है। उस रोड का नाम है M1, उन्होंने इसको नाम दिया है M1। तो बोला वो M1 रोड वही है, सेम लंदन से लेके लीड्स तक है, मगर उसके अंदर हर जो रोड के ऊपर एक जो है एक जिसको बोलते हैं टर्न आता है, एक मोड़ आता है, और मोड़ आने के हर काफी सारे मोड़ उन्होंने रखे हुए हैं, जबकि ऑलरेडी एक रोड था जो वहां से स्ट्रेट था, या लंदन से लेके लीड्स तक स्ट्रेट रोड था जो रोमन्स ने बनाया था। मगर वो रोड जो है उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने ये दूसरा रोड बनाया लंदन से लेके लीड्स तक, मगर उसके अंदर काफी सारे मोड़ थे। और उसका क्या कारण था? बोला रॉयल रोड था लंदन से लेके लीड्स तक जो रोमन्स ने बनाया था, वो इतना स्ट्रेट और इतना स्मूथ था वो रोड कि जब रास्ते के उसके पर जो ड्राइवर्स अगर गाड़ी चलाते तो गाड़ी उनको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो भी करते, तभी भी क्या हो जाता है कि वो जो ड्राइवर्स हैं वो मतलब बहुत से ऐसे एक्सीडेंट्स हुए रॉयल रोड्स के ऊपर, क्योंकि वो ड्राइवर हैं सो जाते थे ड्राइव करने के, क्योंकि कोई इसमें अड़चन आती नहीं थी, सीधा ही सीधा रास्ता था, तो एक स्पीड पे लगा के और सीधा चलाते थे, और उसके बाद में तो कुछ एक्टिविटी थी नहीं,
और वो सतर्क नहीं रहते थे, इस वजह से वहां पर एक्सीडेंट्स होना बहुत बढ़ गया था। तो इस वजह से उन्होंने ये जो नया रोड बनाया M1, उसके अंदर बहुत सारे कर्व्स थे। कर्व्स के कारण क्या होता है कि हमेशा ड्राइवर सतर्क रहता है और हमेशा टर्न करते रहता है। तो कहने का मतलब महाराज ये बता रहे थे, कहने का मतलब ये है कि अगर हम रेगुलेशंस भी फॉलो करेंगे तब भी स्वाभाविक है, तब भी ये चांसेस है ऐसे रोड्स के ऊपर भी एक्सीडेंट होते हैं। यानी अगर हम शास्त्रों के अनुसार भी चलेंगे और उसके बाद भी हम लोग बोलेंगे ठीक है भाई, इसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी हमारी इंद्र तृप्ति के लिए ये मतलब बताया गया शास्त्रों का, उसका बहाना लेकर हम कार्य करने जाएंगे तो भी पतन पॉसिबल है और एक्सीडेंट्स होना पॉसिबल है। तो ये था मतलब कल के जो लेक्चर्स महाराज ने लिया था उसके जो शॉर्ट मतलब सिनॉप्सिस थे। तो अभी हम देखते हैं कि भाई ये हाउ टू ओवरकम लस्ट इज द मेन टॉपिक। आज का जो विषय हम लेंगे वो जो काम वासना है। काम के दो मतलब होते हैं, एक तो कामना, एक कोई भी डिजायर करना, और दूसरी होती है काम वासना। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लस्ट। लस्ट इज काम वासना, विच इज बेसिकली जो हमारी वासनाएं हैं, हमारे हमको ऑपोजिट सेक्स के साथ में संबंध स्थापित करने होते हैं, और ये जो उत्तेजित हमको करता है, तो उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो ये मतलब इसको समझने के लिए हम 3 प्रश्नों का उत्तर देने के माध्यम से हम समझाएंगे कि पहला रूट कॉज ऑफ लस्ट, ये हमारी काम वासना का मेन कारण क्या है, जो मूल कारण क्या है। उसके बाद में रिजल्ट्स ऑफ लस्ट, यानी जो काम वासना है, काम वासना के उससे क्या होता है, और उसके बाद में इस काम वासना को कैसे मतलब उसके साथ में हम कैसे बिहेव करें, उसको कैसे हम कंट्रोल में लाएं, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मतलब अगर जैसे हमने रेवती रमन प्रभु का उस दिन लेक्चर सुना था, तो उस लेक्चर के अंदर जब मैंने प्रश्न पूछा था कि भाई अगर हम ये कार्य करने के बाद में भी हम मतलब बहुत लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी हम करते हैं, तो ये मैं वो काम करता हूँ, तो इसका क्या मतलब इसका क्या उत्तर है। तो उन्होंने बताया था कि आप काम नहीं करते, काम आपकी इच्छा करती है। तो इच्छा, फिर उन्होंने इसको स्पष्ट भी किया कि इच्छाएं, तो मैंने कहा कि इच्छाओं को बंद कर देना चाहिए, इच्छाओं को नहीं करना चाहिए, यानी मेन कल्प्रिट यानी मेन जो दोषी वो इच्छाएं हैं। तो उन्होंने उसका भी समाधान किया। उन्होंने कहा नहीं, इच्छा जो है, अगर आध्यात्मिक इच्छाएं करेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर भौतिक इच्छाओं के पीछे जाएंगे तो आपका पतन निश्चित है। तो भौतिक इच्छाएं मतलब जो भी कार्य हम करते हैं, वो कार्य को जो मोटिवेट करता है, जो प्रेरित करता है, जो हमको उत्तेजित करता है, वो भावना डिसाइड करती है कि जो कार्य हमारा है वो आध्यात्मिक है या जो है भौतिक है। तो इसका उदाहरण देने के लिए, इसको समझने के लिए, दोनों के अंदर मेन जो पॉइंट है वो है हमारी इच्छा। तो इच्छा अगर आध्यात्मिक है तो वो आध्यात्मिक कार्य होगा, अगर इच्छा हमारी भौतिक है तो वो भौतिक कार्य होगा। तो इसको हम समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण है, बोलते हैं पानी जो होता है, पानी अगर लिक्विड स्टेट में उसकी तरलता के स्वभाव में रहता है तो वो मतलब वो पानी है। मगर अगर उसने अपना स्वभाव को चेंज कर दिया, यानी अपने नेचर को चेंज कर दिया और नेचर को बना दिया उसने, और ठंड के कारण उसने जम गया, तो वही पानी क्या बन जाता है, बर्फ। और इसका फर्क क्या पड़ता है, इसका ये जो समझने के लिए, अगर तरलता जो है अगर लिक्विडिटी फॉर्म में है तो उसका क्या बेनिफिट है, और अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो गया तो उसका क्या नुकसान है। तो उसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि एक पानी का जहाज है, पानी का जहाज अगर तरल पानी है, यानी तरलता है, पानी ने अपना स्वभाव तरल रखा है, तो वो जहाज को चलने देगा, वो जहाज को आगे बढ़ने देगा और वो जहाज आगे जाएगा। मगर वही पानी उसने अपना स्वभाव चेंज कर दिया और वो अगर कठोर बन गया और वो अगर जो बर्फ बन गया, तो वही उस जहाज के विनाश का कारण बनता है, जिससे आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग की वजह से बहुत सारे जहाज डूब जाते हैं। तो ये मतलब पानी ने अपना स्वभाव चेंज किया, यानी नेचर चेंज कर दिया। तो वही जो पानी है, जो जहाज को चलने दे रहा था, वही पानी चेंज कर दिया उसने, उस जहाज को डुबाने का कारण बन गया। तो यही यहाँ पर बताते हैं कि अगर जो हम अपनी इंद्र की तृप्ति करते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है, तो उससे उत्पन्न होता है काम। और अगर वही जो इंद्रियां हैं उनको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं और भगवान को तुष्टि देने का कार्य करते हैं, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, तो प्रेम। तो जैसे कविराज बताते हैं कि भाई आत्मेंद्र प्रीति वांछा तररे भली काम, कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो ये प्रेम
नाम जो है अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए क्या उत्पन्न होता है, तो काम वासना पैदा होती है। तो काम यानी इसमें काम वासना यानी काम भी, यानी जिसको हम कहते हैं डिजायर्स, और काम वासना भी यानी लस्ट भी इसी से उत्पन्न होता है कि अगर हम अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने के आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों को प्रीति, उसकी प्रीति के हिसाब से कार्य करने जाएंगे तो वो काम उत्पन्न करता है। कृष्ण की इंद्रियों के लिए हम इच्छा करेंगे, कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण की इच्छा के हिसाब से हम कार्य करेंगे तो उससे हमारे हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये बताया गया है। तो मेन कारण क्या है? मेन इच्छा, मतलब इच्छा जो है वही मेन है जिसकी वजह से ये होता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि भाई ये जो लस्ट है, जो जिसको हमने बताया एक्सप्लेनेशन ऑफ लस्ट, तो पहले तो लस्ट का एक्सप्लेनेशन क्या है, लस्ट क्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं, कृष्णा एक्सप्लेन दैट लस्ट इज द ओनली which is born of contact with the material mode of passion। रजोगुण के साथ में जब हमारा भौतिकता के वजह से हम जो है रजोगुण के अंदर हम जो मतलब आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, तो हमको हमारे अंदर ये काम वासना उत्पन्न होती है। और उसके बाद में ये पूर्ण नहीं होता, अगर ये काम वासना हमारी पूर्ण नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध आता है, और क्रोध एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व का दुश्मन है। तो श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ दिस श्लोक। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि ठीक, जो अगर भगवान के प्रति हमारे हृदय के अंदर प्रेम है, सभी जीवों के अंदर है, मगर वो कैसे काम के अंदर तब्दील हो जाता है, कैसे वो बदल जाता है। जिस तरह दूध है, दूध के अंदर अगर थोड़ी सी भी खटाई मिल जाती है तो क्या हो जाता है, तो दूध जो है दही बन जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारे अंदर प्रेम जो है, प्रेम है, मगर वो प्रेम जब जो भौतिक चीजों से रजोगुण के अंदर आकर उससे संपर्क करता है, तो वो चेंज, जो प्रेम है वो लस्ट बन जाता है और वो काम वासना बन जाता है। और वो जब भी सेटिस्फाई नहीं होता, काम वासना हमारी पूरी नहीं होती, हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती, तो हमारे अंदर गुस्सा आता है, और उसके बाद में हम भ्रम में चले जाते हैं कि भाई मेरे कारण और मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो ये जो चीज है, ये मतलब प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है भगवद गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में। तो इसके बाद में आता है कि जिस तरह सांप होते हैं, जो गरुड़ है, गरुड़ के दुश्मन कौन है, तो गरुड़ के दुश्मन सांप है। उसी तरह निर्विशेषवादी और शून्यवादी वालों के लोगों के लिए जो उनका वो जो निर्विशेषवादी है, वो कौन है, वो भक्ति के दुश्मन है, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप को जानते नहीं। उसके बाद में जो उसी तरह जो हमारी काम वासना है, सो लस्ट इज द एनिमी ऑफ द कंडीशन सोल। जो बद्ध जीव है, जीवात्मा है, उनका दुश्मन जो है वो है काम वासना। इट इज द फर्स्ट ऑफ द 3 गेटवेज टू हेल। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है कि ये 3 जो रास्ते हैं उसके लिए, मतलब अपने नरक में जाने के लिए, उसमें से सबसे पहला जो लस्ट है वो सबसे पहला द्वार है। लस्ट इज सो पावरफुल दैट इट मे सीम इम्पॉसिबल टू ओवरकम। तो बोलते हैं जो ये काम वासना इतना मतलब मजबूत है, इतना पावरफुल है कि उसको ऊपर हम विजय पाना असंभव है, एक प्रकार से बताया गया है। तो ब्रह्मचारी वॉज टू फाइट सेक्स डिजायर्स एंड मेक समटाइम्स थिंक ही इज विनिंग द बैटल ओनली टू फाइंड हिमसेल्फ प्लंज इनटू द ओशंस ऑफ मटेरियल डिजायर। तो बोलते हैं ब्रह्मचारी जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई मैंने इस जो सेक्स डिजायर है, जो मेरी काम वासना है या कामुकता के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, मगर जब वो देखते हैं कि तो वही, मतलब जब ऐसा सोचते हैं तो वही वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो उसके बाद में जब उनको पता चलता है तो वो भौतिक जगत के जो इस संसार के अंदर बड़े जो दुख का सागर है उसके अंदर गोते लगाते फिरते हैं। तो लस्ट इज द रूट कॉज ऑफ द अदर वाइसेस। ये एक लस्ट के बारे में और एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो लस्ट है वो दूसरे जो पाप हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब की जो मेन कारण है लस्ट। तो व्हाट कॉजेज लस्ट? अब हम देखेंगे कि भाई हमको ये लस्ट जो है वो क्यों मतलब कैसे होता है, क्यों होता है हमको। तो जब हम ये सोचते हैं कि आई एम द एंजॉय, यानी ईश्वर अहम भोगी, तो जब हम ये कहते हैं कि भाई मैं भगवान हूं और मैं भोगता हूं, तब ये जो है इसका मेन कारण ये है, जो इसके लस्ट का उत्पन्न होने का कारण। तो हम उसके अंदर उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ रावणा। लक्ष्मी देवी जो आई थी माता सीता के स्वरूप के अंदर, और सीता किसके लिए बनी है? सीता राम के लिए बनी है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? लव मीन्स टू असिस्ट सीता इन हर अफेयर्स विद रामचंद्र जी। तो मतलब अगर हमारा जो लव का मतलब क्या होता है कि हमको भगवान, हम माता सीता को
उनको उनकी सहायता करनी चाहिए, उनके कार्य में उनकी मदद करनी चाहिए, सो दैट कि वो भगवान श्री रामचंद्र के साथ में वो आनंद ले सकें। तो इसके अंदर मतलब सही माने में जिसने किया है तो वो कौन लोग हैं, तो हम देखते हैं जो बहुत सारे उदाहरण हैं, उसमें से कुछ उदाहरण हैं, हनुमान जी हैं, सुग्रीव है, लक्ष्मण है। इन्होंने हमेशा यही चाहा कि जो सीता मैया है हमेशा राम के साथ में रहे और वो आनंद प्राप्त करे। जितने भी अयोध्या के जितने भी रहवासी थे वो भी यही चाहते थे, मगर रावण ने क्या चाहा, रावण सीता को भोगना चाहता था। तो वही क्या हो गया कि चैतन्य चरितामृत के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, लव इज दैट नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ सोल टू वांट टू गिव प्लेजर टू गॉड। जब हम हमारा स्वरूप ही ये है कि हम भगवान की सेवा में रहें, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण का दास होके कृष्ण की जो कृष्ण की लीलाएं हैं उनको भगवान के अंदर हमको समर्पित करना है। मगर जब हम ये हमारी सेल्फिश डिजायर हो जाती है, जब हमारी जो हम लोभी हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं ही भोगी हूँ, तो ये एक कारण है जिससे लस्ट उत्पन्न होती है, जिससे जो है काम वासना होती है। उसके बाद में बता दें कि इसका दूसरा क्या मतलब जो दूसरा क्या कारण है, तो बताते हैं कि कारण जिन अंगों से ये जिन अंगों के अंदर ये उत्तेजना पैदा होती है वो भी दूसरे अंगों की तरह किसके कहने पे चलते हैं, तो मन के कहने पे चलते हैं। दे आर वर्किंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माइंड। तो अगर हम मन को कंट्रोल में रखेंगे तो उन अंगों को उत्तेजित होने का मतलब चांस ही नहीं मिलेगा। तो हमको हमारे मन को जो है कंट्रोल करना है। उसके बाद में तीसरा उदाहरण बताते हैं कि जो हमारे संस्कार हैं, संस्कार यानी क्या, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो विचार हैं वो न केवल इस जन्म के मतलब अनेकों पिछले वाले जन्मों के कारण भी वो हमारे अंदर वो इम्प्रेशंस रहते ही हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर रहती है। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो एक तरह से जो है हमारा संस्कार बन जाता है, हमारे दिमाग के अंदर छप जाता है। एंड ईच संस्कार बिकम्स एडेड टू द स्टॉक पाइल्स ऑफ मेंटल इंप्रेशंस। और ये जो संस्कार हैं जो हमने आगे पिछले जन्मों के अंदर और इस जन्म के अंदर जो भी हमने ऐसे विचार किए हैं, तो वो हमेशा जो है उसकी बढ़ोतरी होती जाती है, वो एकत्रित होती जाती है और ये खत्म भी नहीं होते। अगर हमारे शरीर की मृत्यु हो भी गई तो जो हम दूसरा जन्म लेंगे उसके अंदर भी वही जो है ये स्टॉक जो है वो पूरा आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो बोलते हैं कि सेक्सुअल एक्ट्स और इवन थॉट्स ऑफ सेक्स प्रोड्यूसेस पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग संस्कार। न केवल जो अगर हम ये संभोग की प्रतिक्रिया करते हैं उससे जो है मतलब उत्पन्न होता है, मतलब ये संस्कार से उत्पन्न होते हैं, मगर उसके खाली विचार मात्र से अगर हम विचार भी करते हैं उन चीजों के बारे में तो वो भी एकत्रित होते जाता है और वो हमारे आगे वाले जन्मों के अंदर आता है। तो देखिए कि हम ये इसका उदाहरण कैसे हम समझ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर अजामिल का उदाहरण आता है। अजामिल तो एक ब्राह्मण था, इतने अच्छे कार्य करता है, मगर उसका पतन कैसे हुआ, तो स्मृति जो पहले वाली स्मृति है, पहले जो उसने कार्य किए उसका एक इंप्रेशन उसके दिमाग में रह गया था और वो आगे चल के मतलब उसने ऐसे कार्य किए जहां से उसका डाउनफॉल हुआ। तो अभी हम देखते हैं कि रिजल्ट्स ऑफ लस्ट यानी हमारे काम वासनाएं उसके अंदर उसके रिजल्ट्स क्या है, उसका परिणाम क्या होता है। तो देखिए कि हम जब राम जी हैं वो रावण के सर काट रहे थे, तो जब बाणों से उनका सर काट रहे थे तो उसी समय उसका जो दूसरा सर वहां पर आ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे अंदर भी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो एक खत्म करते हैं तो दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म करते हैं तो तीसरी आ जाती है। तो ये एक जो हमारी हृदय के अंदर ही प्रोपेंसिटी है, हमारे हृदय के अंदर ही एक उसका जो मन का कार्य है कि वो हमको हमेशा जो है इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा लेती जाए, और ये नेवर एंडिंग है। जैसे कहते हैं इच्छाएं कैसी है, तो इच्छाएं समुद्र के अंदर लहरों की तरह हैं, कभी भी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। फर्दर इफ योर लस्ट इज फुलफिल्ड यू विल बी अटैच्ड टू द बॉडी। अभी एक तो कारण ये हो गया कि हमारी ये इच्छाएं पूरी नहीं होती, मगर किसी कारणवश चलो हमारी वो इच्छा पूर्ण भी हो गई, हमारी इच्छा पूर्ण हो गई तो हम और उसी जिस चीज के साथ में हमारी संतुष्टि हुई, यानी जिस चीज के साथ में हमने मतलब स्त्री ने पुरुष के साथ में और पुरुष ने स्त्री के साथ में संबंध बनाए, तो उस स्त्री या उस पुरुष के साथ में वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट हो जाती है, एक विषय हो जाता है जिसके साथ में हम हमेशा रहना पसंद करेंगे, वो कार्य करना पसंद करेंगे और रहना पसंद करेंगे। एंड उसके बाद में क्या होता है, फिर
जो अगर उससे अगर हम अलग हो गए, यानी पति अगर पत्नी से अलग हो गया, पत्नी अगर पति से अलग हो गई, या तो वो अपने प्रेमी से अलग हो गए, तो उसमें क्या होता है, उन दोनों के बीच में दुख पैदा होते हैं। तो जब वो अलग हो जाते हैं, तो कहने का मतलब है कि ये इसके कारण क्या होता है, दुख का कारण भी यही है। उसके बाद में आता है लस्ट इज योर एनिमी। कृष्णा कहते हैं, कृष्णा हैज डिक्लेयर्ड लस्ट इज एन एनिमी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इट डिग्रेड्स वन फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ गुडनेस एंड लीड्स द पाथ ऑफ हेल। लस्ट डिस्ट्रॉयज ऑल द वर्चुज ऑफ अ पर्सन। अगर हम इस काम वासना के जो आदी हो जाएंगे, तो ये हम उसके जो है गुलाम बन जाते हैं, और हमारा जो है पतन निश्चित है। दिस एनिमी, ये जो है हमारा दुश्मन है, ये जो लस्ट है, वो पहले अटैक कहाँ करता है, तो बोला वो जो है आपके मन के ऊपर जो अटैक करता है, और मन के माध्यम से वो आपकी इंद्रियों को जो है अपने वश में करता है, और धीरे धीरे आप उसके ऊपर जो आश्रित हो जाते हो, उसके ऊपर रहना चाहते हो। तो बोलते हैं अभी इसको जो है कैसे डील करना चाहिए। तो एक्चुअली बहुत सारी पॉइंट्स हैं, अगर प्रयास करते हैं जितना कर सकते हैं हम लोग। तो एज एक्सप्लेन अर्लियर, सिंस द माइंड इज द कल्प्रेट, अगर जैसे बताया गया कि मन की वजह से ये कार्य होते हैं, तो मन को हमको कंट्रोल करना है। मगर वहां पर वही बात आ जाती है कि जो अर्जुन कहता है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बलवद दृढ़म। तो मेरा मन इतना चंचल है, तो मैं कैसे उसको कंट्रोल करूं। तो भगवान उसको कहते हैं अभ्यास न तो कौनते है, तो अभ्यास करना चाहिए। तो अभी अभ्यास कैसे करना चाहिए वो हम आगे देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी कि अगर हमको काम वासना के ऊपर जो है विजय प्राप्त करनी है, तो जो हमारे मनुष्य का जो देह मिला है, उसके हिसाब से ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो कैसे, तो उसके अंदर किसका हस्तक्षेप चाहिए। तो मनुष्य को जो कार्य करने, मनुष्य को इसके पर विजय प्राप्त करना है, तो इसका हस्तक्षेप करने के लिए हमको जो है आध्यात्मिक जगत से हमको शक्ति चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, हमको भगवान श्री कृष्ण से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर जितनी भी काम वासना है, तो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, हे भगवान, मेरे सुबह जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सभी से मुझे मुक्त करो। तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए और सिंसियर होनी चाहिए। उसके बाद में डोंट सप्रेस बट डायरेक्ट योर सेंसेस। कहते हैं कि किसी भी चीज को आप ये जो है, ये इच्छा जो है, इसको दबा के मत रखो। दबाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ये स्प्रिंग की तरह वापस आता है। तो अगर हमको लगता है कि हमने, जैसे मैंने बताया, ब्रह्मचारी सोचते हैं कि हमने विजय प्राप्त कर ली, मगर वो बहुत फुल फोर्स के साथ में आता है, और वो आपकी जो है मस्तिष्क को या अपने इंद्रियों को आपके मन के द्वारा उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, डोंट सप्रेस बट डायरेक्ट योर सेंसेस। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां हमको भगवान की सेवा में लगानी है। तो वो करने से क्या हो जाएगा कि उस चीज के प्रति हमारी जो है आसक्ति नहीं होगी। और ये कैसे संभव है, तो बोला जिस तरह हम बच्चा अगर छोटा सा बच्चा है, 10 महीने का है या एक वर्ष का है, वो बच्चा हाथ में चाकू लेके उसको पता नहीं है, वो चाकू से लेके खेलना प्रयास करता है, चाकू बहुत तेज है। तो माँ उसको जब चाकू लेने जाती है तो बच्चा बहुत रोता है। तो माँ क्या करती है, या तो उसके सामने कोई खिलौना रख देगी, तो खिलौने के अंदर जब उसका ध्यान भटक जाता है तो उसके हाथ से चाकू खींच लेते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारे जो मन के अंदर से जब ऐसे विचार आते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम बड़े हो गए हैं, तो हमारे दूसरे ये खिलौने काम नहीं आएंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, तो हमको हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। तो कैसे, उस समय क्या करना चाहिए, तो जो भी ऐसे हमारे आचार्यों ने भजन गाए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि ये काम वासना कितनी बुरी चीज है, उन भजनों को सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चैंट एवरी डे विथ फुल अटेंशन। कभी भी आप चैंट करते हो तो हमेशा भगवान का पूरा ध्यान रखते हुए हमको ये चैंटिंग करनी चाहिए। और प्रसादम खाना चाहिए, क्योंकि प्रसादम एक ऐसा मात्र है, प्रसादम भी जितना हो सके जो डिवोटीज ने बनाया है, उन्होंने जो बनाया है वो प्रसादम को ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही साथ हमको ये भी करना चाहिए कि जितना हो सके जब हम प्रसादम ग्रहण करते हैं तो पूरा ध्यान हमारा प्रसादम के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद का मतलब होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, यानी भगवान की एक कृपा है जो हमको मिली है, और उस कृपा के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर जब जाएगा, तो वो जब जाएगा तो वो अंदर जाके कृपा करेगा और हमारे मन और हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो ठीक ये एक हो गया। उसके बाद में जब भी कोई भी हमारे मन के अंदर ऐसे कोई काम वासना के ख्याल आते हैं, तो भगवान के जो लीलाएं हैं उनके बारे में
हमको उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। जब हम उनका चिंतन करेंगे, उन लीलाओं का चिंतन करेंगे, तो ये हमारी एक हैबिट बन जाएगी। तो हैबिट बनने का मतलब क्या है कि वो हैबिट ऐसी हो जाती है कि फिर जभी भी हम ऐसे ख्याल आएँगे तो हमने बार-बार उस चीज़ को, भगवान की लीलाओं को याद किया, तो धीरे-धीरे हमारी जो है, हमारी मनोवृत्ति चेंज हो जाएगी। और लास्ट में हमको जो आता है एग्ज़ाम्पल एक आता है, जो लिक्विड ब्यूटी एक स्टोरी थी जिसके बारे में अगर सबने पढ़ा होगा कि एक मतलब आदमी है जो बहुत प्रभावित हो जाता है एक भक्त के साथ में, और वो लड़की है जो वो क्या करती है, वो बोलती है कि तुम इस शरीर के ऊपर क्यों इतने वो, तो बोलता है नहीं, मुझे कैसे भी करके आपसे साथ में मतलब संबंध कायम करने हैं और आपके साथ में आपको अपनी पत्नी बना चाहता हूँ। और उसके बाद ये प्रभुपाद के इसमें है, स्टोरीज के अंदर है, लिक्विड ब्यूटी करके इसका नाम है। तो आप पढ़ सकते हो उसके अंदर से। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर वो लड़की कहती है ठीक है, ऐसा कहिए, आप 1 हफ्ते के बाद में आप मुझसे मिलने के लिए आइए। तो उसकी सुंदरता इतनी खूबसूरत थी वो लड़की की, उसके पीछे वो कायल हो जाता है। तो फिर लड़की क्या करती है, लड़की उसको, अब वो हफ्ते के बाद में आता है, हफ्ते के बाद में आके उसका दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे तो जैसे वो एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है, तो उसको देख के, और उसका फेस के ऊपर तेज नहीं है, उसके पूरे बाल रूखे हैं, उसका पूरा शरीर मतलब जो है ढीला पड़ा हुआ है, निस्तेज औरत है, वो दरवाज़ा खोलती है। तो वो उसको बोलता है कि भई वो यहाँ पर एक जो सुंदर लड़की थी, वो कहाँ पर है? तो बोलता है ठीक है, तो वो लड़की उसको ले जाती है, और लड़की उसको एक कमरे में बोला, हाँ ठीक है, चलो मैं तुमको ले जाती हूँ, बताती हूँ वो लड़की कहाँ है, वो सुंदर लड़की कहाँ है। तो उसको एक कमरे में ले जाती है, कमरे के अंदर जैसे ही वो जो मनुष्य है वो उसके अंदर जैसे ही प्रवेश करता है, तो वहाँ पर बहुत ही बुरी बदबू, गंध आती है, बहुत ही, क्योंकि वहाँ पर उसने औरत ने जो तो वो बोलता है, "ये क्या, तुम कहाँ ले आई मुझे?" तो बोलता है, "ये जो है वो जो जो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की थी, वो ये है।" तो बोला, "क्या बकवास कर रही हो?" तो तुमको उसको समझाती है कि भाई मैं वही लड़की हूँ, मगर क्योंकि मैं ये, और जो मेरी जो खूबसूरती थी वो यही है, जो जिसकी वज़ह से मैं खूबसूरत थी, और ये सब क्या है? तो ये उसने जो बर्तनों के अंदर उसने सब अपने मल-मूत्र, और उसके साथ में उसने अपनी उल्टी और ये सब जो है ना जमा करके रखी थी। उस लड़की ने कुछ ऐसी दवाइयाँ खाई थी जिसकी वज़ह से ये सब उसने, और उस लूज़ मोशंस हो गए थे, तो वो जो है विष्ठा भी उसने सब जमा करके रखी थी। बोलता ये जो मेरे शरीर के अंदर था, तो वो मैं मतलब मैं खूबसूरत लग रही थी। ये मेरे शरीर से अभी निकल गया है, तो कैसे लग रही है देखिए। तो ये माध्यम, इस तरह से हमको समझना चाहिए कि जो अगर किसी की खूबसूरती लगती है, तो ये सोचना चाहिए कि अगर इसकी ऐसी कंडीशन हो, अगर उसको मतलब ये दवाइयाँ दी जाए और उसकी पूरी खूबसूरती किस चीज़ के अंदर है, तो मल, मूत्र, पस, खून, इसके अंदर इस खूबसूरती है, और वो खूबसूरती नहीं है, वो एक मतलब जो है कचरा है शरीर के अंदर। तो जो रियल में जो ब्यूटी है वो क्या है? रियल में ब्यूटी है वो आत्मा है, और ये शरीर तो आज नहीं कल जाना है। तो ये जब हम बातें बार-बार सोचते हैं, तो इस माध्यम से हमको पता चलता है कि भई ये जो शरीर है, शरीर किसी काम का नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, और इस जब जब ये हमारे हृदय के अंदर ख़्याल आते हैं, तो हमको पता चलता है, और इस जो एक कहते हैं कि जिसपे एक क्या कहते हैं, द्वेष जो है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर ये गलती है, जो हमारे अंदर ये विचार है, जो लस्ट के बारे में, वो समाप्त हो जाएगी, और हम उस जब ये बार-बार सोचते रहेंगे कि भाई किसी की भी ब्यूटी परमानेंट नहीं है, ये सोच के, और ये सिद्धांत और ये जो लिक्विड ब्यूटी का अगर हम अपने जीवन में उतार लें, तो हमको उसके प्रति, किसी के प्रति भी आकर्षण नहीं होगा। आकर्षण सिर्फ़ एक ही के प्रति होना चाहिए, वो है कृष्ण के प्रति। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो तो ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रहा है? यस प्रभु। या थैंक यू प्रभु। एकदम क्लास वाज वेरी रियली फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था, और ऐसे लग रहा था कि हम लोग कोई थीसिस ऐसा देख रहे हैं। तो मतलब हु, हाउ, व्हेन, सब मतलब पूरा सारा पॉइंट आपने कवर कर लिया, तो इट वाज रियली वेरी नाइस। बहुत अच्छा एक रोड मैप था कि ये कैसे आता है, कहाँ पे रहता है, सब कुछ इसमें आपने
बहुत अच्छे से आपने इसको बताया। खाली ये एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता था कि हम लोग मतलब फिलोसॉफिकली जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन ये भगवान ने ही ऐसा बनाया है कि इट इज सो अट्रैक्टिव। ये बोलते हैं सबसे बड़ा चेन है हमारा, हम लोग को यहाँ से निकलने नहीं देता। तो ये फिलोसफी सब जानने के बाद में भी जो है हम लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है भक्ति में अगर रहें हम लोग, भक्ति से हम लोग बहुत अच्छे से जो है अपना मन अगर भगवान में केंद्रित है तो हम लोग कभी भटक नहीं पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग भक्ति का माध्यम यूज करके अपने मन को वश में रखें हम लोग। तो यही एक ऐड करना था। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू फॉर एडिंग दिस पॉइंट। और जैसे मैंने इसमें बताया क्लास के अंदर कि हमको हमेशा जो है भगवान से सहायता मांगनी चाहिए, इसके ऊपर हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। और महाराज भी यही बताते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू विन ओवर द लस्ट, इट इज ओनली बाय द डिवाइन मर्सी ऑफ द लॉर्ड दैट यू कैन बी अंडर कंट्रोल। तो इसके बोलते हैं रॉयल रोड्स के ऊपर भी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हम किसी का भी पतन हो सकता है, मगर वो पतन से हमको बचाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। या प्रभु, या थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उद्धव प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था। और जैसे आपने प्रभु जी एंड में आपने ये कहा कि हमें भगवान से कम्युनिकेट करना चाहिए, तो कल शाम को हम लोग इसके ऊपर ही डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है भगवान के साथ, श्री प्रभुपाद जी के साथ, गुरु महाराज के साथ, वो कहीं कहीं मतलब कभी कभार वो मतलब होता नहीं है, उसकी वजह से मतलब हम भटकने का चांस ज्यादा होता है। तो प्रभु जी इसलिए प्रभु जी और वही बता रहे थे कि हमें हमेशा भगवान के साथ, प्रभुपाद जी के साथ, गुरु महाराज के साथ जहाँ पे भी हो वहाँ पे हमें कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, उनसे बातें करते रहना चाहिए। तो हमें उनसे सहायता मांगते रहना चाहिए, तब जाके हम उसमें मतलब जो भी हमारे बाधाएं हैं स्पिरिचुअलिटी में वो सॉल्व हो सकता है। तो वही हम कल बात कर रहे थे प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच सर्वर गिरधारी प्रभु, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये पॉसिबल तभी है जब हम हमारे अंदर से ये अहंकार निकल जाए कि मैं ऑन माय ओन कर सकता हूँ। अपने हिसाब से हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते, हमको किसी न किसी की सहायता जरूरत है, उसकी सहायता लेनी पड़ती है और लेनी चाहिए ताकि हम हमेशा संग में रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। थैंक यू प्रभु जी, इतना ये सेंसिटिव बात है वो आपने इतनी अच्छी तरह समझाई, और सिर्फ आपने प्रॉब्लम ही नहीं बताया, साथ में सॉल्यूशन भी बताया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास दिया प्रभु जी। और प्रभु जी अपने जैसे रॉयल रोड्स के बारे में कल अपने वो भक्ति का स्वामी महाराज का लेक्चर भी इसमें समराइज किया। इसमें आपने बताया कि रूट, रिजल्ट एंड हाउ टू रिजॉल्व एंड कंट्रोल, फिर इसको कैसा डायरेक्ट करना चाहिए इन सर्विस ऑफ लॉर्ड। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपका क्लास। और प्रभु जी एक चीज मैं ऐड करना चाहता था कि शिला प्रभुपाद जी का एक करस्पॉन्डेंस लेटर है, उसमें शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इफ यू आर कृष्णा कॉन्शियस मीन्स यू आर रियली मीन्स लाइक कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, तो हाँ जो डिवोटी फॉलो कर रहे हैं he has no more feels any bodily pains and pleasure. After all, we are not this body, but we should make progress steadily by following the rules and regulation and not making experiments. तो ये पॉइंट मुझे ऐड करना था प्रभु जी। ये शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि ये बॉडीली प्लेजर्स एंड जो भी पेन्स है बॉडीली, तो अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर हम लोग अपने गुरु साधु और शास्त्र
के माध्यम से अगर हम लोग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जैसे अपने गुरु महाराज ने बताया, जो अपने भक्तों के संग में अगर वो सीरियसली फॉलो करेंगे, सो इट इज वेरी इजी to direct us towards in service of Lord Radha Gopinath ji. Hare Krishna Prabhuji, thank you for wonderful class and thank you for summarizing in detail. Thank you Prabhuji. Hare Krishna. एक्चुअली दरअसल बात बहुत सारी पॉइंट्स है, कम से कम 20 पॉइंट्स है प्रभु कि हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू गेट इनटू इट, मगर टाइम की वजह मैंने देखा नहीं कि मतलब यहाँ पर 7:40 हो गए, तो वे ख्याल आया कि मैंने बोला अरे टाइम निकलते जा रहा है, इसके लिए मैंने एब्रप्टली इसको क्लास को खत्म कर दिया। काफी सारी पॉइंट्स है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर उदाहरण आता है हरिदास ठाकुर जी का, तो वो भी एक देखिए कि कहते हैं मतलब अगर शुद्ध भक्त होगा तो उसको प्रोस्टिट्यूट भी आके उसको एजिटेट नहीं कर पाती, उसने प्रोस्टिट्यूट को उन्होंने प्रोस्टिट्यूट को भी जो है एक भक्त बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, मगर हैड टू कट डाउन बिकॉज ऑफ द टाइम। हरे कृष्णा। Yes प्रभुजी, तुकाराम महाराज जी का भी एग्जाम्पल प्रभुजी। थैंक यू प्रभुजी। और खाली आधा घंटे के अंदर आपने इतना प्रिपेयर किया, मैं तो बोलता हूँ कि आपको अभी सुबह भी पता चलता तो भी आप क्लास दे सकते थे प्रभुजी, इतना अच्छा। थैंक यू प्रभुजी, वंडरफुल क्लास प्रभुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, उद्धव प्रेष प्रभु। अगर Yes, आपके प्रभु। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं तो हम लोग एक काम कर सकते हैं प्रभु, इनको कंटिन्यू करते हैं हम लोग प्रभु जी। कहाँ शाम को? या शाम को? या कैन कंटिन्यू, या श्योर। या क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है ना कि मतलब इसमें जीव फंस ही जाता है, ये ऐसा चीज। तो हम लोग को एटलीस्ट फिलोसॉफिकली हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या है, हम लोग कैसे बच सकते हैं, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ एंड व्हाट इज द राइट चॉइस, है ना, क्या हमको। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस। और भी जो आपके पॉइंट्स है वो हम लोग इसको कवर कर सकते हैं शाम को। श्योर प्रभु, श्योर। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु।